small business and entrepreneurship in India. Then we had already studied what is small business, what is the criteria of the government under MSMED Act to classify these business. ये आपके पेपर का बच्चे बहुत important question है classification वाला कि how does government of India classify the MSME, वो जो box में बना हुआ है, which we had studied in the last class when we had met ये वाला. Then we also have studied what is their role in the country's economy. Again, an important question. Their problems. Then हमने एक बहुत important concept start किया था, which I called as entrepreneurship skill. यानी कि हम लोग कहते हैं businessman तो business तो कोई भी कर सकता है, it's okay, but it is not like that. Yes, a person who is having the clever what you call skills, वो बिल्कुल business कर सकता है. You don't need to go to a business school to become a businessman if you have that temperament, that competency. Ambani, Tata, ये सब they were born, but वो जो skills हैं औरों में भी जिनको लगता है कि यार business तो जो है मेरा cup of tea नहीं है, मैं business नहीं कर सकता हूँ. I have heard so many people, those who say no business और हम ना भाई नहीं, हमारे बस की बात नहीं है. तो ये जो बस की बात नहीं है, this is where we lack. India और countries like India need entrepreneurs. हम लोगों को बिजनेसमैन चाहिए जो कि सेटअप करे, क्योंकि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होगा तो टेरिटरी डेवलप होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरिटरी डेवलप होगा तो अपने आप ही कंट्री का जो रेवेन्यू है, जो जीडीपी मॉडल है, वो बन हो जाएगा. तो उसके लिए हमें करना क्या है? तो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग मेनी schemes, they have bought many of the policies they have brought up कि आप जैसे बच्चे जो है they can become the entrepreneurs. तो इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था what is intellectual property right, यानी कि इंटेलेक्चुअल आप अपने आप समझ सकते हो, इंटेलिजेंस. एंड जब आपने उसको क्रिएट किया तो वो आपकी प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि उस प्रॉपर्टी को क्रिएट करने का राइट आपको ही है. तो देयर आर सम प्रोटेक्शंस गिवन टू दीज पीपल जिनका ये ओरिजिनल काम होता है. ये हमने लास्ट में पढ़ा था. Now today we will be discussing what is Startup India scheme. एक तो हम लोग ये पढ़ेंगे what is Startup India. Then we have the types of IPs, intellectual properties. हम मतलब कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हम लोगों ने जो है in detail we have to study. This is what we are left with this in this chapter. तो in the last class I told you that intellectual property का मतलब हो जाता any innovation, anything which is new. आजकल आपने अगर I don't know how many of you are very well versed with the new organic technology, vegan weather, यानी कि without any animal product. तो आजकल क्या है कि नई नई चीजें, दो चीजों को लेकर बनाना, something which is innovative. इसे लेकर if you are starting up in India, the government of India is giving you a number of what you call as programs. तो why, मतलब इसका क्या एम है? ये बॉक्स में बना है, प्लस do not skip anything inside the NCERT book. The very first is it triggers an entrepreneurial culture and inculcate entrepreneurial values in the society at large and influence the mindset of men towards entrepreneurship. जो अभी आपको मैंने बताया that in India हम लोग जो है business को, वो तो business class है, वो तो हम तो मिडिल क्लास है, हम तो भाई सर्विस वाले हैं. तो we have already, हमने खुद को डिवाइड कर रखा है. तो if
द गवर्नमेंट इज गिविंग, क्यों कर रखा? क्योंकि पहले टाइम में अगर आप देखते तो नो डाउट वी हैड मेनी entrepreneurs, those who had ventured into business, those who had failed, those who had taken the risk, those who have gone to the top, those who are now no more in this business world. बट अगर हमें, और इसीलिए लोगों को डर लगता है कि अगर हम वेंचर करेंगे कल को हमारा लॉस हुआ तो क्या होगा। और इसी वजह से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग यू नंबर ऑफ स्कीम्स, जिसका पहला एम है आपको ये चीज समझाना, create awareness about the charms of being an entrepreneur and the process of entrepreneurship, encourage more dynamic startups by motivating educated youth, scientists, technologists to consider entrepreneurship as a lucrative, preferred and viable career. Engineer बने, जॉब कर लो, साइंटिस्ट बने, किसी लैब में लग गए, बट वी नेवर हैव दैट कि हम खुद जो है इन्वेंट कर सकते हैं। Broad base the entrepreneurial supply by meeting specific needs of underrepresented target groups like women, socially and economically backward communities, underrepresented regions to achieve inclusiveness and sustainable development to address the needs of population at the bottom of the pyramid. पिरामिड मतलब आपका बना हुआ है एक हिरार्ची जिसमें सबसे नीचे हैं ये लोग। अगर आप विमेन एंटरप्रेन्योर को देखोगे तो आप देखो कितने लोग हैं, कितने हैं, लेकिन अगर आप अब देखोगे ऑन द नेट you will find over the past 5 years the number of women entrepreneurs have increased. ऐसे कई अवार्ड्स होते हैं, ऐसे कई जो है मतलब कि मीटिंग्स होती हैं जहां पर इनको जो है इम्पोर्टेंस देकर इनके जो करियर है या एंटरप्रेन्योर्स मतलब कि एंटरप्राइजेस हैं उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आज की डे पर दो नायका इज अ कंपनी बट इट वाज स्टार्टेड लाइक एन एंटरप्रेन्योरशिप। नायका जैसी कंपनीज, देन अमिताभ बच्चन जी की जो पोती है नाव्या, शी हैड हर मतलब कि उसने अपना वेंचर स्टार्ट कर रखा है। वो तो चलो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बट देन ऑल्सो मतलब देर आर सो मेनी पीपल हु हैव वेंचर्ड इनटू स्मॉल बिजनेस, दोज हु आर सेटिंग अप द आइडियाज एंड ट्राइंग टू बिल्ड द इकोनॉमी। तो नाउ हमारे यहाँ पर लेट अस नाउ कम कि हम लोगों ने कल कहा, लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों क्यों जरूरी है भाई। अब आपने कोई दवाई बनाई, सबसे ज्यादा अगर आप लोग देखोगे ना तो मूवीज में जो गाने आते हैं उसकी काफी मतलब कि देर आर सो मेनी उसकी कंप्लेन्स होती हैं। इफ यू हैव सीन सम ऑफ द मूवीज, आई डोंट नो विच मूवी आई हैड, मैंने पढ़ा था कि वो जो उस मूवी के अंदर इवन जो स्टेप्स जो थे दैट वर कॉपीड। अगर आप कॉपी करते हो वो बुरी बात नहीं है, आप राइट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मतलब मैं कल एक मूवी देख रही थी तापसी पन्नू की, ब्लर, आई थिंक ब्लर, BLURR, ब्लर। दैट मूवी इज द रीमेक ऑफ अ स्पैनिश मूवी, आई थिंक जेन्स आई कुछ ऐसा नाम था उसका। तो अगर आपको कोई मूवी दोबारा बनानी है, जैसे ट्यूबलाइट वाज आल्सो अ कोरियन रीमेक, तो आप उस प्रोड्यूसर के पास जाओ, उसको पैसा भी देना पड़ता है, जो भी आपको कॉपीराइट लेना है यू नीड टू गिव सम मनी, एंड देन कौन सी चीज को आप कॉपी करने वाले हो, फ्रॉम दैट वेदर यू आर गोइंग टू कॉपी द सॉन्ग्स, वेदर यू आर गोइंग टू कॉपी द एंटायर मूवी, ये आपको एग्रीमेंट देना पड़ता है। बट मेनी टाइम्स बुक्स, स्टोरीज, मूवीज, इवन मेडिसिन के जो आपके फॉर्मूलास, हमने जनरल में मैंने आपको बता दिया, आपने उसको यूज कर लिया। नाउ इट वाज माय मेरा था कि आई शुड हैव टेकन द पेटेंट,
अब मैंने पेटेंट को नहीं लिया, मैंने प्रॉपर्टी राइट नहीं लिया, तो मेरी ओरिजिनलिटी चली गई और मेरा नाम किसी और ने ले लिया. There are so many. Abhi recently, I don't know which one of the writer had put an allegation on a very famous director कि ये मेरा ओरिजिनल वर्क था. जब मैं वो मतलब कि मैं स्टोरी सुनाने गया था, तो द पर्सन सेड आई एम बिजी, आई विल रीड दिस लेटर ऑन, एंड ही मेड द मूवी. अब वो क्लेम नहीं कर सकता है अनलेस एंड अंटिल ही हैज द ओरिजिनल पेपर्स ही कैन शो. तो ऐसा कई बार क्या होता है कि किसी ने बनाया और उसका फायदा किसी और ने उठा लिया. So it encourages creation of new path-breaking inventions such as cancer cure medicines. There are so many scientists who are working on this. There are number of, जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पर there were so many new medicines, new inventions, जिसने बताया कि कोविड किस किस चीज से ट्रिगर कर सकता है. It incentivizes inventors, authors, creators for their work. It allows the work created by a person to be distributed and communicated to the public only with his or her permission. जो अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपको कॉपी करना है तो you need to take the copyright. Therefore, it helps in the prevention of loss of income. It helps authors, creators, developers and owners to get recognition for their work. आपने किसी और का काम चिपटेप लिया और फिर आपने अपने नाम से रख दिया. देखिए, स्कूल के अंदर कॉपी एंड पेस्ट चीटिंग करना आसान है, बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो एंड इफ यू आर डूइंग इट, दैट वुड ruin द बिजनेस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने कोई नया लिया है, उस दिन आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, विच इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. इफ यू हैव गूगल्ड और इफ यू हैव नॉट, यू कैन डेफिनेटली गूगल इट. शार्क टैंक पर एक इंसान आया था, उसका नाम था जुगाड़ू, कुछ नाम था उसका नाम, जुगाड़ू तो मुझे याद है. तो दैट पर्सन हैज इन्वेंटेड, उसने इन्वेंट किया है एक ऐसा मशीन जिससे कि पानी को जो है पौधों तक पहुंचाना फॉर द स्मॉल फार्मर्स इजी रहे. तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नई नई चीजें, क्योंकि शार्क टैंक जो है दैट इज डीलिंग विद द सेम कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनलिटी. तो उसके अंदर उसने जो है इस चीज को दिखाया था. नाउ मान लो कि उसने तो शार्क टैंक पर दिखा दिया, एंड मोर ओवर इट वॉज acknowledged by the people also, and now everyone knows कि वो उसने बनाया था. लेकिन मान लो उसने किसी को बताया और उसने उसको अपने नाम से बना दिया और उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो क्योंकि इसमें क्रोर्स ऑफ मनी हम कमा सकते हैं. I'll show you this thing. I don't know how many of you have seen. This was this जुगाड़ू कमलेश. अगर आप लोग देखो तो आपको ये दिखाई देगा. इसने जो है मतलब यहाँ पर आई डोंट नो दिस, एक तो बहुत सारे बने. दिस इज अ पर्सन हु हैड डन दिस, और इसका ये था जुगाड़ू कमलेश करके. यू कैन सी नाउ ही हैज लॉटियर. दिस इज द वन व्हिच ही हैज इन्वेंटेड. ये अब इससे वो पानी को लेकर चल रहा है. ये छोटे छोटे ऐसे उसने कई मतलब वो इन्वेंट कर रखी है. तो नाउ दिस इज वेयर व्हाट वी कॉल एज IPR comes into picture. अगर वो इस चीज की पेटेंट ले लेता है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके लिए वो अपने नाम से आएगा, एंड वॉट एवर मनी ही इज गोइंग टू अर्न दैट वुड बी हिज ओन मनी. लेकिन अगर उसने नहीं लिया होगा तो देन व्हाट विल हैपन इज कोई और उसका जो है ओरिजिनल आइडिया को चोरी करके खुद कमाएगा.
सो आईपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आता है कौन कौन सी होती हैं आईपीज. ये आपके पेपर का मैच द कॉलम, आइडेंटिफाई दोनों में आ सकता है. राइट बहुत ध्यान से सुनना, मैच द कॉलम में भी आ सकता है एंड आपका आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये कौन सा आईपी है, विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. As I've already told you that IP rights allow the creators and inventors to have control over their creations and inventions. These are for artists, entrepreneurs, inventors to further commit the necessary resources to research, develop, market new technology, creative work. और अभी क्या है, we are all living in the world of Google. So everything is openly available. एक चीज को आप Google पे डालो, आपको सब कुछ मिल जाता है. The changing global economy is creating unprecedented challenges and opportunities for continued progress. There are business opportunities to market or sell IP worldwide. Now, geographical borders present no impediments. Consumer enjoy immediate access. At such exciting time, it is critical that we are aware about the importance of IPR and how it affects. क्योंकि अब हम लोगों के साथ में क्या है, we can buy, we can copy, we can read anything. लेकिन अब होता क्या है कि आपको चीटिंग करना भी उतना आसान है क्योंकि अब सब चीजें रीजन में. तो ये है आपका पहला कॉपीराइट. तो कॉपीराइट का मतलब होता है नॉट टू कॉपी. कॉपीराइट का मतलब होता है डू नॉट कॉपी. आपके जितने भी एनसीईआरटी या रिफ्रेशर बुक होता है उसमें लिखा होता है नॉट टू बी रीपब्लिश्ड या फिर कॉपीराइट करके दूसरे या तीसरे पेज में लिखा हुआ होता है. It is offered when an original idea is expressed by the creator or author. It is for literary, artistic, musical, sound recording, cinematography. ये होता है यानी कि prohibition of the unauthorized reproducing and distributing copies of the subject matter. The unique feature is protection of work arises automatically as soon as the work comes into existence. The registration of the content is not mandatory, but it is essential to exercise exclusive rights in case of an infringement. Infringement मतलब अगर कोई तोड़ता है तो फिर आपको इमीडिएटली अपने राइट्स को दिखाना पड़ेगा. किस किस चीज के लिए हम कॉपीराइट ले सकते हैं? लिटरेरी वर्क यानी कि जो हम लिखते हैं, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, नॉवेल्स, बुक्स, पोएम, सॉन्ग, लिरिक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार, आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो आपके आर्किटेक्ट में बनता है, टेक्निकल ड्राइंग्स, मैप, लोगोस, डांस या मीम, स्क्रीन प्ले, म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफी. कई बार ऐसा होता है कि कॉपीराइट हो जाता है. अभी देयर वाज अ फाइट बिटवीन नेहा कक्कड़ एंड द ओरिजिनल फाल्गुनी पाठक अबाउट द सॉन्ग याद पिया की आने लगी. सो इट वाज अ कॉपीराइट बिकॉज वो उसका वीडियो था. अगर आप वीडियो को कॉपी कर रहे हो, आप उसके लिरिक्स को कॉपी कर रहे हो, तो यू नीड टू टेक द परमिशन. The permission is granted to you with or without money. You cannot copy it. Second is trademark. यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपका, कोई भी, anything, it is not necessary कि it is original. Anything you are making, anything you are buying, sorry, आप बना रहे हो, आपके 12th क्लास में है प्रोजेक्ट, राइट? नाउ आपके पास भी है, आपके पास पेप्सी भी है और आपका जो है यू आर ऑल्सो हैविंग मिरिंडा, यू आर हैविंग लिम्का, यू आर हैविंग कोको कोला, यू आर हैविंग थम्स अप. नाउ पेप्सी, थम्स अप एंड आपका कोको कोला तीनों जो है कोक के टेस्ट में जा रहा है. लिम्का और स्प्राइट आपका सिमिलर है. नाउ हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम? एंड द डिफरेंस होता है हमारा
व्हेन द कंपनी जो इसको बना रही है, अब दो चीजें तो बनेगी, एक जैसे दो मोबाइल्स है, ओप्पो का ओप्पो है, वीवो का वीवो है, सैमसंग अपना है, एप्पल अपना है। तो नाउ द कंपनी विल बी गेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब आप बनाते हो, when you are producing, the moment you have मतलब कि started producing, आपको अपना एक ब्रांड का नेम देना पड़ता है, जो आपके 12th स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट भी रहेगा मार्केटिंग में। अब आपने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, ब्रांड दे दिया है, अब उसको कोई ना कोई आप मार्क या कोई नेम तो दोगे, और उसको आप लीगल प्रोटेक्शन लोगे कि कोई और इस नाम को या इस मार्क को, इस सिंबल को कॉपी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका प्यूमा, एडिडास, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जिसके आपके ट्रेडमार्क होते हैं। इफ यू सी कोको कोला, उसके अंदर अगर आपने देखा हो, उसके बॉटल में लिखा होता है TM, कोको कोला, जहां पे लिखा होता है ना, आज का इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है ना, वहां पे COCAL ऐसे ऐसे बना के, ऐसा गोल सा बना के ऊपर लिखा होता है TM, एंड दैट TM मींस ट्रेडमार्क, यानी कि दैट मार्क हैज बीन गिवन एज अ लीगल राइट टू दैट कंपनी अंडर विच दे वुड बी मैन्युफैक्चरिंग देयर गुड्स और सर्विसेज। तो आप कॉम्पिटिटर हो तो यू कैन नॉट यूज द सेम और सिमिलर ट्रेडमार्क। दिस इज वेरी कॉमन, लेकिन होता भी है, लेकिन लोग करते हैं, बट इट इज नॉट अलाउड। जैसे आपके वर्ड्स, लेबल, कलर कॉम्बिनेशन, जैसे आपका पहले माइक्रोसॉफ्ट का था रेड ब्लू करके था, दैट इज ट्रेडमार्क। लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स, जैसे मैगी का जो पैकेजिंग है वो येलो कलर का आता है, वेरएस आपका जो दूसरा टॉप रेमन का वो दूसरे कलर का आता है। सो दिस मे बी देयर। देन देयर माइट बी साउंड मार्क, डायनामिक मार्क। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ, आपको ये दोनों नहीं याद कर, आपको ट्रेडमार्क को बताना कि व्हाट इज ट्रेडमार्क। इन सम एरियाज smell and taste are also considered for protection as trademarks, like Coca-Cola. They do not sell their मतलब कि जो उनका फॉर्मूला है to anybody, only when they are giving it, जैसे उसका जो ओरिजिनल कंपनी है दैट्स इन US, तो अक्रॉस द वर्ल्ड आपको कोको कोला मिलता है, लेकिन अगर आप कभी भी कोको कोला US में और मतलब कि यूरोप में पियोगे और इंडिया में पियोगे ना, तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। जमीन और आसमान का, वहां का कोको कोला सचमुच में वो कोको कोला है, यहाँ पर तो कुछ और ही बनाते, लेकिन जो उसका फॉर्मूला होता है ना, वो आपका जो है दे सेल आउट दैट फॉर्मूला फॉर मिलियंस ऑफ, मतलब कि वो विद मेनी लीगल प्रोटेक्शंस in some parts of the world, but they are not recognized as trademarks in India. The registration of trademark is not mandatory under the Trademark Act, but registration of trademark helps exclusive right over the mark. जैसे आपका यहाँ पर है इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, आप नहीं करवाओगे तो कोई भी आपकी चीटिंग करेगा ना। कोको कोला का अगर कोई करके दिखा दे, वो कंपनी गई क्रोर्स में, बट देर आर सो मेनी कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करती हैं, अपना TM नहीं कर लेती हैं, then what happens, people can just, आप उसकी, वो लोग चीटिंग करते हैं, and this happens with many of the items which are produced. कॉपीराइट तो बहुत ही फेमस है इन द फैशन इंडस्ट्री, इन द लिटरेरी इंडस्ट्री, सब जगह। थर्ड, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि उस जगह का नाम देना। आपको पता है कोई, मतलब कुछ कुछ चीजें जो है कुछ एक एक जगह की आपकी फेमस होती है, तो GI primarily is an indication which identifies agricultural, please understand it, natural और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड में भी हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स या फूड स्टफ ही आते हैं, फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी।
जैसे असम, दार्जिलिंग चाय। तो दार्जिलिंग इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। GI are part of our collective and intellectual heritage that needs to be protected and promoted. Goods protected and registered as GI are categorized into agricultural products, क्योंकि most of the time it is the मतलब वहां का क्राफ्ट हो गया, वहां के मैन्युफैक्चर्ड गुड, वहां का स्पेसिफिक फूड हो गया। जैसे कांजीवरम साड़ी, if you go to Kanjipuram, you will find there every household is making this sari. अब मैं अपने घर में बैठकर यहाँ बनाऊं और मैं कहूँ ये कांजीवरम साड़ी है, then या फिर मैं कॉपी करूं, so that is why that geographical indication is given. For example, नागा मिर्च, नागालैंड का, मिजो चिल्ली, शपी लनफी, मोइरांगपी, चक्सिंग शॉल, बस्तर ढोकरा, वर्ली पेंट्स, इवन आपके पेंटिंग्स में तंजावुर पेंटिंग्स भी आते हैं। नागपुर ऑरेंज, बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ी, दैट इज बनारसी साड़ी, कश्मीरी पश्मीना, दार्जिलिंग टी, असम टी, ये मैं आपको जस्ट सारे बता रही हूँ, पेपर में सारे आए हुए हैं। दीज आर ऑल द, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन जहां से वो प्रोड्यूस होता है, एंड द नेम हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू इट। The importance of GI has increasingly grown over the past few decades because it represents the collective goodwill of a geographical region. वो किसी एक का नहीं है, उस पूरे रीजन की खासियत है। राजस्थानी मिर्च बोलते हैं, गुजराती ढोकला बोलते हैं, पंजाबी ढोकला नहीं बोलते हैं। वो हम अलग बात है कि हम किसी चीज का कोई भी नाम दे सकते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि इंडिया तो जुगाड़ू है। Today, consumers are paying more and more attention towards the geographical origin of product, क्योंकि वो originality को maintain करता है, and accord much care to the specific characteristics present in the product that they purchase. बहुत फर्क पड़ता है। There are two things, एक होता है place of origin and दूसरा है geographical indication. Means that the product will have a particular quality or characteristics that may value. प्लेस ऑफ ओरिजिन है, कहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, जैसे सिल्क कहां से ओरिजिनेट हुआ था, चाइना से। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब ये जो साड़ी है ये बनारस में बनी है। आपके पेपर में आता है माहेश्वरी सिल्क, मतलब सिल्क, इट्स वेरी फेमस ऑफ मध्य प्रदेश में माहेश्वरी। पटोला, पटोला इज वेरी फेमस इन गुजरात। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली टेम्पल साड़ी इज वेरी फेमस ऑफ आंध्रा, क्योंकि वहां बनता है। तो दे हैव द यूनिक डिजाइन ऑल्सो। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है पोचमपल्ली डिजाइन है, लेकिन आप पोचमपल्ली साड़ी नहीं बोल सकते हो। मतलब आप में अगर आपने वो सेम डिजाइन लिया है अपनी साड़ी को बनाने में, तो आप ये बोल सकते हो पोचमपल्ली स्टाइल, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो पोचमपल्ली साड़ी, क्योंकि पोचमपल्ली साड़ी का मतलब है द वन विच हैज बीन मेड इन पोचमपल्ली ओरिजिनली फ्रॉम दैट वीवर्स। तो जो हमारे वीवर्स हैं, हमारे जो एग्रीकल्चरल जो मतलब कि लोग हैं जो उस जगह को बिलोंग करते हैं, दे हैव क्रिएटेड, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई है। थर्ड, पेटेंट। जितनी मेडिसिन है आपकी, आप देखो जब कोविड वैक्सीन के लिए बहुत सारी कंपनीज लड़ी थी, तो पेटेंट दिया जाता है जो उसको ओरिजिनली क्रिएट करता है। द पेटेंट कैन बी सोल्ड, द पेटेंट कैन बी हायर्ड। मैंने क्रिएट किया, मैंने बाद में अर्गम को बेच दिया, मुझे क्रोर्स मिल गए, अर्गम मेरे नाम मतलब कि उस पेटेंट के नाम से मेडिसिन बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको सेल आउट कर सकती हूँ। मैं चार बच्चों को, मैं चार मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्री है, अंश की इंडस्ट्री है, आर्यन की इंडस्ट्री है, अर्गम की इंडस्ट्री, अतुल की इंडस्ट्री, मैंने चारों को बेचा, चारों अलग अलग नाम से करते। क्रोसिन, क्रोसिन, क्रोसिन के कितने नाम है बताओ? क्रोसिन, पैरासिटामोल, आपके इतने सारे नाम है। आपके आई थिंक जो आपके रेड्डी लैब है उनका कुछ और नाम है तो वो फीवर की मेडिसिन है, वो पैरासिटामोल, पैरासिटामोल के ही अलग अलग नाम है।
तो ये जो आपको हम जो अलग अलग नेम्स देते हैं, बिकॉज मेडिसिन जब बनता है, ड्रग जो बनता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, आप उसे किस नाम से प्रोड्यूस करना चाहते हो, क्योंकि जो वो फॉर्मूला होता है वो पेटेंट होता है, फिर आप उसको अपने नाम से कर सकते हो। डाइक्लोफेनिक आप देखो, डाइक्लोफेनिक इज सोल्ड इन डिफरेंट वेज, है वो दर्द की दवाई। A patent is a type of IPR which protects the scientific inventions, the products, the process, which shows technical advancement over the already known products. A patent is an exclusive right guaranteed by the government of India, which provides exclusive right to exclude all others and prevent them from making, using, offering for sale, selling, or importing that invention. That can be anything. For an invention to be patentable, patent में सिर्फ medicines नहीं आते हैं, जो मैंने भी आपको जुगाड़ू दिखाया था, that's a patent. It should not already exist in the current knowledge anywhere in the world. It must be non-obvious to any person who is skilled in relevant field of technology. That is, the standard is a person reasonably skilled in such field of study. मतलब invention. Finally, it must be capable of industrial production. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने घर के अंदर एक पेटेंट बना दिया और मैं कहूँ इसको मुझे पेटेंट दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। उसको गवर्नमेंट जो है टेस्ट करती है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, देन वो देखती है कि कमर्शियली वेदर इट इज वायबल, वेदर इट इज गोइंग टू बेनिफिट द पीपल एंड वेदर इट इज गोइंग टू ब्रिंग रेवेन्यू, तब आपको पेटेंट मिलता है। Patent can only be filed to get rights over an invention and not discovery. What is the difference between invention and discovery? You know, invention is something new, bilkul original banana, and discovery is which already exists और आपने उसको ढूंढा, आपने उसको ढूंढा. There is difference. Invention is something to be made new ekdam. Newton saw, for example, I'll give you one example of this invention and discovery. आप एक साइंटिस्ट हो, ठीक है, आप एक पहाड़ पर गए, आप साइंटिस्ट थे, आपने पहाड़ को स्टडी किया एंड यू फाउंड दैट उस पर्टिकुलर पहाड़ के अंदर एक ऐसा मिनरल है विच नोबडी नोस, which is commercially viable. आपने उसको टेस्ट वेस्ट किया and ultimately you found that that is very precious metal, जिसको पहले कभी मिनरल which is जो पहले नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, हमारे पीरियोडिक टेबल हमारे उसमें कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा नया चीज आपके आया. नाउ यू कैन टेक दैट इन्वेंशन, आप उसकी पूरी पेपर तैयार करके लेबोरेटरी में भेज कर आप उसकी ओरिजिनल पेपर्स रखकर अपना पेटेंट ले सकते हो. तो वो आपने उस एरिया को डिस्कवर किया जहां वो चीज मिली और वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी. डिस्कवरी है आप कहीं घूमते घूमते गए और आपने एक बहुत खूबसूरत चीज देखी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी, जो पहले किसी ने देखी नहीं थी, और आपको पता लगा कि एक मतलब सबको पता था कि इस एरिया में दिल्ली के अंदर ये जगहें हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि दिल्ली में ये भी जगह है, तो आपने डिस्कवर किया. इन्वेंशन का मतलब हो जाता है कुछ नया बनाना, एंड इनोवेशन होता है क्रिएटिव. इन्वेंशन होता है टू क्रिएट, बट उसको क्रिएटिव बनाना, खूबसूरत बनाना, मतलब इन दैट वे, दैट इज इनोवेशन. उसमें ऐड करना, दैट इज इनोवेशन. मोबाइल वॉज एन इन्वेंशन, बट आज जो हम यूज कर रहे हैं ना मोबाइल, दे आर इनोवेशंस, क्योंकि उसके अंदर मोबाइल जब बना था तो इट वॉज ओनली अ device for taking or receiving the calls. Today it is also an, मतलब कि हमारे लिए सबसे बड़ा तो हम लोगों के लिए क्या है पता, वो कैमरा है. हम शायद मोबाइल्स में उतनी बातें नहीं करते हैं जितना कि हम उसमें फोटो खींचते हैं. तो टुडे इट इज एन इनोवेशन.
Newton saw the apple fall and discovered gravity, which considered to be a discovery, क्योंकि gravity already exist कर रहा था, उसको पता लगाया था न्यूटन ने. On the other hand, father of telephone, Alexander Graham Bell, invented telephone. So thus, when we use our ability to create something novel मतलब new, something unique, उसको हम invention करते हैं, and जो already existing है, अगर हम उसको highlight कर दे तो उसको discovery कहते हैं. Patent creates a the purpose of patent is to encourage innovation in scientific field. आपको मैं already बता चुकी हूँ. A patent grants exclusive rights to the inventor for a period of 20 years, during which anybody else who wishes to use need to seek the permission by paying certain costs for the commercial use of such inventions. This process of seeking exclusive right of the patentee for fee is called as licensing. उसको license मिलता है उस patent को use करने का. Patent creates a temporary monopoly. Once the term of patent expires, the invention is in public domain, which is now free. जैसे अब तो सब कुछ है. Scientific, what cannot be patented? Scientific principles contrary to well established natural law. भाई natural law को आप patent थोड़ी कर दोगे. Abstract theory यानी कि जिसको आप touch नहीं कर सकते हो, something which you understand. Any frivolous invention, गलत invention, prejudicial to morality, injurious to public health. Method of agriculture, horticulture, treatment. Method of treatment को आप patent नहीं कर सकते हो, medicine को treatment कर सकते हो. Traditional knowledge, incremental invention without increase in efficacy. मतलब आपने कोई चीज को इन्वेंट किया है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, आर नॉट पेटेंटेबल. बट एनीथिंग विच इज न्यू, विच इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल अंडर द साइंटिफिक, स्पेसिफिकली इन दी आपके जेनेटिक्स है, आपका जितना जेनेटिक्स है, आपके जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये सब कुछ आपका पेटेंट के अंदर जाता है. Next is design, means exclusive pattern, shape, line, color that is supplied to any article, जो आपकी चीजों को खूबसूरत बनाता है. It is a protection given to the aesthetic appearance or eye-catching features. The term of protection is 10 years, जिसको आप 5 साल और ले सकते हो, during which a registered design can only be used after getting a design from its owner, and once the validity period is over, the public, it is there in the public. जैसे आपके डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइनर्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, फैशन डिजाइनर्स हो गए. आपने देखा होगा, आप मार्केट, आपने मतलब कि कोई चीज पहनी, फिर आप कहते हो कि देखो भाई उसने मेरी कॉपी कर ली, कॉपी कैट. मार्केट में आपको ऐसे बड़े सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, डिजाइन्स. आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन्स. व्हाट इज द डिजाइनिंग? तो व्हेन अ डिजाइनर इन एनी एरिया क्रिएटिवली किसी चीज को डिजाइन करता है, तो उसके बाद वो अपने डिजाइनिंग को प्रोटेक्शन ले सकता है. अगर वो नहीं लेता है, फिर the person can be sued. I have a real life example in this context, because my daughter is in the creative field only, in the fashion design. मतलब है तो वो TJ Maxx में, but she had done her designing में. तो when she was in her last, हमारा जो मतलब उनका जो last था, तो उन लोगों को अपना डिजाइन क्रिएट करना था. Now what happened is उसके साथ में 3, मतलब she has 3 best friends. उसमें से एक जो गर्ल है, वो इज वेरी वेरी नोन टू अस, एंड मतलब हमारे लिए बहुत क्लोज है. शी इज जस्ट लाइक माय डॉटर ओनली. शी इज आल्सो वर्किंग इन शी वाज आल्सो वर्किंग इन वन ऑफिस. वन डे शी वेंट टू, जिस ऑफिस में वो काम कर रही थी, उस ऑफिस का डिजाइन लेकर वो एक बहुत बड़े, मतलब जाने माने ब्रांड में गई थी अपना डिजाइन सेल करने के लिए.
जब वो उसने वो डिजाइन दिखाया, आप पता क्या हुआ? विद इन 5 मिनट्स उसे बोला गया कि कीप दिस मोबाइल हियर, उसको चारों तरफ से घेर लिया, एंड शी वॉज ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम ऑल द वेबसाइट्स की ये कहीं पर भी अब जॉब नहीं कर सकती है। और उसकी गलती क्या थी? वो तो उसका डिजाइन लेकर गई थी जिस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी। देन इट टुक अराउंड 1.5 years हमें इस चीज को उसको मतलब कि ठीक करने में, उसको ये प्रूव करने में 1.5 साल लगा कि उसका उस डिजाइन से कोई लेना देना नहीं था। शी वॉज ओनली वर्किंग इन दैट कंसर्न। बाद में उस कंसर्न को बंद कर दिया गया। राइट नाउ दैट कंसर्न इज अंडर, मतलब कि उसमें कोर्ट में उसका केस चल रहा है। तो व्हेन यू आर मेकिंग अ डिजाइन, जैसे आपने सुना होगा ये रोहित बाल, मनीष मल्होत्रा की मतलब कि ये मनीष मल्होत्रा का ड्रेस है, बिपाशा बासु ने अपनी शादी में ये पहना था, दीपिका पादुकोण ने अपने उसमें मनीष मल्होत्रा का पहना था। तो ये जो डिजाइनर्स होते हैं, दे आल्सो हैव द राइट्स, चाहे वो कॉपीराइट में अंडर लेकर आए या फिर डिजाइन के अंडर लेकर आए, दे गेट द लाइसेंस। देन दे सेल आउट दीज डिजाइन्स एंड दैट इज हाउ इट कम्स इनटू द मार्केट। ऐसे ही मार्केट में आते हैं, बट दे हैव द राइट ओवर दैट पर्टिकुलर डिजाइन फॉर अ मिनिमम पीरियड। तो दैट डिजाइन कैन बी एनीथिंग विच इज क्रिएटिव, वेब डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कुछ भी। प्लांट वेराइटी, it's essentially grouping plants into categories based on their botanical characteristics. It is a type of variety which is bred and developed by farmers. अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बार बार ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके कई बता रही थी, जेनेटिक साइंस का बता रही थी। तो कई हाइब्रिड वर्जन्स है। अगर आप ब्लिंकिट देखोगे ना, तो ब्लिंकिट को खोलकर देखना इस क्लास के बाद, उसमें लिखा हुआ होता है ये हाइब्रिड टोमेटो है, ये ओरिजिनल टोमेटो है, ये ऐसा टोमेटो है, ये वैसा टोमेटो है। ये प्लांट की वेराइटीज होती है। Such protection promotes investment in research and development, recognizes Indian farmers as cultivators, conservers, and breeders, as well as facilitates high quality seeds and planting material. This leads to growth of seed industry, specifically जो plant है, जैसे पोटैटोज जो है, दे आर ग्रोन इन डिफरेंट वेज। तो उसी तरीके से ऐसे कई आपके सीड्स हैं जिनको वो लोग जो है प्रिजर्व करके नए तरीके से उसको उगाने की कोशिश करते हैं। सो दे आर ऑल्सो गिवन द प्रोटेक्शन। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन, दिस इज द लास्ट वन। कंप्यूटर चिप देखा होगा, मोबाइल चिप्स देखे होंगे, आपने देखा होगा। तो पहले जमाने में तो ये होता था टीवी खराब है तो आईसी खराब हो गया, एक सिंपल वर्ड होता था, कुछ नहीं आईसी खराब हुआ है। नो, व्हाट इज आईसी? और वो आईसी होता था इतना छोटा सा, इतना सा, अपनी उंगली में एक छोटा सा। A semiconductor is an integral part of every computer chip. Any product that contains transistors, circuitry elements used formed on a semiconductor material as an insulating material or inside the semiconductor material, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आपके काम आती है, आपके जिसमें चिप होते हैं नीचे। So whether a business is establishing its presence in the marketing or already well entrenched, protecting and managing its intellectual property is critical in taking the business ahead. ये है आपका importance of business. Any business has to continuously innovate and think ahead, otherwise it will simply stagnate and wither away. अभी जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इन्वेंट तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आप उसे इनोवेट नहीं करोगे, उसमें नई चीजें नहीं डालोगे, तो व्हाट विल हैपन? ओवर अ पीरियड वो खराब हो जाए। इट इज इक्वली एसेंशियल टू रेस्पेक्ट अदर्स आईपी, नॉट ओनली ऑन एथिकल बट ऑल्सो लीगल। भाई आपको दूसरों का भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बहुत जरूरी है कि हम एक जैसा बना रहे हैं, बट वी नीड टू टेक अ प्रॉपर परमिशन। कौन सी चीज? तभी तो हम लोगों को, जब कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना हो, एनी प्रोडक्ट, एनी थिंग यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर,
you need to get the license. आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप उस मतलब कि पर्टिकुलर कंपनी या फिर उसके ब्रांड या उसके लोगो के अंडर काम कर रहे हो. एक बहुत सिंपल वो है, हम लोग सब मैकडोनाल्ड्स जाते हैं, all of us. McDonald's, KFC. Now, McDonald's is not an Indian food. It's not an Indian culture also. तो then अगर आप सीपी के मैकडोनाल्ड में जाते हो या आप लक्ष्मी नगर के मैकडोनाल्ड में जाते हो, एक जैसा कैसा होता है? हाउ द सेम वेराइटी, हाउ द सेम कलर, सब कुछ कैसा मेंटेन हो रहा है? दिस इज बिकॉज जो ओरिजिनल मैकडोनाल्ड है उनसे इन लोगों ने जो इसको चला रहे हैं उन्होंने लाइसेंस लिया है, उन्होंने फ्रेंचाइजी ली है कि हम आपके नाम से अपनी कंट्री में वी विल बी रनिंग दिस बिजनेस. तो दिस इज हाउ द पेटेंट, कॉपीराइट्स ये सब आपके काम करते हैं. After all, respect for others' IP begets respect for one's IP. Startup is an entrepreneurial venture that capitalizes on developing, improving and innovating new products, process and services for target audience. अगर आप सर्विस मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि इतने सारे आपके जो है नंबर ऑफ मतलब की इनोवेशंस हैं. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पास मतलब मोर देन लैक्स ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स उनके पास आए हुए हैं. Startups today are responsible for several disruptive technologies that have changed the very way we think and live. With 20,000 plus startups, India is said to be the third largest startup ecosystem in the world. जो भी हमारे यहाँ पर है ना छोटे छोटे, ये सब एक टाइम पर स्टार्टअप थे. टुडे दे हैव ग्रोन इनटू बिजनेस, दे हैव वेंचर्ड एज कंपनीज. आपका बोट, ऐसे बड़े सारे ऐसे हैं जिनके मैं नाम बता सकती हूँ जो एक समय पे बहुत छोटे थे, जिनको हम जानते नहीं थे. सबसे पहला जस्ट डायल. जस्ट डायल आज की डेट पर जेडी इज वन ऑफ द फेमस वन, लेकिन आप आज से उसको 20 साल पहले देखते तो जेडी वॉज ओनली अ वन रूम. हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो आगे सिर्फ एक रिसेप्शन था ना, उतना था जस्ट डायल. टुडे इट्स अ कंपनी. तो बड़े सारे आपके हैं जिन्होंने नया जोमेटो, स्विगी, दीज आर ऑल द स्टार्टअप्स. स्टार्टअप मतलब न्यू, एकदम न्यू था. अब पहले डिलीवरी कहाँ होती थी? आज आप बोलो, अब ये जो जेप्टो है, ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, दे आर ऑल स्टार्टअप्स एंड यू कैन सी हाउ दे आर बूमिंग अप, क्योंकि वो इनोवेशन है, नया आइडिया है. The Startup India seeks initiative to capture the entrepreneurial streak in Indians, create a nation of job creators, not job seekers. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की है. तो अगर हम खुद ही एम्प्लॉयमेंट अपने लिए क्रिएट करें तो हम अपने लिए तो करेंगे, दूसरों को भी देंगे. फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट हुआ था इन इंडिया, सचिन बंसल, व्हाट वाज इट? इट वाज नथिंग. आई हैव वन, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इन गाजियाबाद वी हैव वन स्टार्टअप कॉल्ड सैंड विजेट्स. दे हैव द बेस्ट सैंडविचेस, देन मॉकटेल्स एंड आपका वड़ा पाव वगैरह होता है उनका. they have the franchises in 2 or 3 places. तो ऐसे नए नए आइडियाज होते हैं जिसके अंदर, एंड दे आर ऑल MBAs फ्रॉम IMT. वो जो चारों बॉयज हैं वो IMT से हैं. तो आज की डेट पर क्या है, किसी भी नए आइडिया को, हमारे पास बड़े सारे आइडियाज होते हैं, पढ़ाई करते हुए हम नई आइडियाज को लेते हैं. कई लोग होते हैं वो कॉपी कैट करते हैं, बट नए कई बार हम नए अपने आइडियाज लेकर आते हैं. तो अगर हम उन आइडियाज को प्रोटेक्ट करें, उनको एज अ बिजनेस यूज करें, क्रिएट करें कुछ नया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एज वेल एज फॉर द प्रॉफिट, देन इट बिकम स्टार्टअप. IP or intellectual property rights can be critical in aiding a new venture.
monetize their ideas and establish competitiveness in the market by extending the protective umbrella offered by IPO. Otherwise, तेल तो ये कंपनी भी बनाती है, पैराशूट भी बनाती है, डाबर भी बनाती है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस अपने अपने पेटेंट में है, अपने मतलब कि दे हैव बीन गिवन दिस परमिशन, दे हैव बीन गिवन द परमिशन टू यूज द सेम फॉर्मूला. वो अपने नाम से बनाते हैं, वो अपने नाम से बनाते हैं. नहीं बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन? कॉम्पिटिटिवनेस आपका कम रहेगा. नाउ ये तो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, लेकिन जब आपने कंपनी एस्टैब्लिश ही नहीं किया है तब आप क्या करोगे? आपके आइडिया को कोई और चुरा लेगा, तब आप क्या करोगे? जैसे मैंने बताया, देयर आर सो मेनी. आप अगर न्यूज वगैरह पढ़ते हो या फिर इफ यू आर फॉलोइंग सम, यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी मूवीज, सॉन्ग्स, एल्बम्स, डिजाइन्स, मेनी थिंग्स विच लोग कहते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हमारा ओरिजिनल आइडिया है, but they don't get any legal protection. Others enjoy on their designs, on their ideas. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कल को अगर आप में से कोई भी बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो नथिंग, एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए यू डोंट नीड टू बिकम, आपको टाटा या बिरला जैसा, मतलब कि आप पैदा नहीं हुए, आप सोच नहीं सकते हो. टाटा, बिरला या अंबानी जो है वो हम जैसे ही एक इंसान था. They were also like us. Today, if they are there after 100 years, so that is because of the innovations they have given. You can also become, take the risk, but if you are making something new, you are going to get lots of assistance from the government, but you also need to protect yourself as well as your business from all kind of copyrights, copy, by using IPR, intellectual property right. इसमें आपका इंपॉर्टेंस से ज्यादा बच्चे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, कॉपीराइट किसको किसको मिलता है. मतलब आपको you may be given a match the column, or you may be given an application, यानी कि एक केस आपको दे दिया है और आपको उसमें पता करना है कि आइडेंटिफाई द IPR विच हैज बीन वायलेटेड. तो कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट, उसका नाम क्या है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको सारा, एंड देन प्लांट वेराइटीज, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये आपके उसके अंदर आएगी. प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस आपके आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ MSMED अंडर द एक्ट आपके आता है. These are some of the important concepts from this particular chapter.